फाइनली अखोई मुंबई यौरे अखोई हुजे आजाद मैदान दा चली होरेन अमुक यौरगा उचरा Requesting the audience to please settle down and take seat. 통곡 여울던 펌새라 Good afternoon, everybody. I, Pooja Sinha Duggal, And I, Nombok Mitay Marangkem, welcome all to the peace rally to save the integrity of Manipur. continue. On this day, 17th June 2023, we have gathered in large numbers at Azad Maidan, Fort Mumbai, with our brothers and sisters joining us from different parts of India for Manipur Peace Protest. Thank you for the support, everyone. The Manipur Peace Protest is organized by WMC, World Meitei Council, among Association of Manipur Diaspora Pune, MMA, Manipuri Meitei Association Navi Mumbai, and the Mumbai Peace Rally. This peaceful demonstration is to raise concerns on the current conflict in Manipur. We, the Manipuris living in Maharashtra, hereby express our deep concern regarding the ongoing conflict in Manipur, which poses a serious threat to the peace, security, and socio-cultural fabric of our state. We are honored to have our guest, Mr. Nabakishore Singha, the national spokesperson of the World Meitei Council, gracing us with his presence. His wisdom and passion for the cause will undoubtedly inspire all those in attendance. We are privileged to welcome Robert Norim, an international fashion icon whose influence extends far beyond the realms of style. We have Lynn Leishram, a talented Bollywood actress and international model who will share her voice and add grace to this event. Before we move on, we request the audience to please observe silence and offer joint prayers in honor of innocent victims and heroes lost in the last. Thank you so much. ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯡ ꯅꯕꯀꯤꯁꯣꯔ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ National Spokesperson World Meitei Council ngasi Mumbai da pangthokliba mifam asida aihak saruk yajage aina aihak Guwahati dagi lakpani. Let me start in Hindi. I think we have media brothers, and first and foremost I thank World Meitei Council Maharashtra Unit, MMD, MMA, Aman, and Mumbai Peace Protest, the organizers. In Mumbai today we have gathered. आज हम लोग यहाँ पे सब एकत्रित हुए इसलिए कि जो मणिपुर में जो हिंसात्मक घटना चल रहे आज उसका ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो चुके हैं। इसके लिए आज पुणे से हमारे भाई आए हैं, भाइयों बहनों आए हैं, और जो मुंबई में जो मेइतेई संप्रदाय है आज एकत्रित हुए हैं। हम मेइतेई एक ऐसा हमारी जनगोष्ठी है
जो आज ऐसे एक सिचुएशन में खड़े हुए हैं जो आज हमारी पहचान को ललकार है, हमारी जो राज्य है मणिपुर को, उसको ललकारा गया है। हम वैसे जो दूसरे कम्युनिटी हम वैसे भाग्यशाली नहीं है। आज देखिए इतना गर्मी में आज हमारे यहाँ पे जो मैतेई जो संप्रदाय की भाइयों बहनों आज आए हैं, एकत्रित हुए हैं और आज यहाँ पे हम लोग एकत्रित होके आज जो मणिपुर के जो हिंसात्मक घटना हो रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए और हम संवेदन करते हैं। ये हिंसात्मक घटना जरूर में 3 तारीख को चुराचांदपुर से हुआ है, जहां पे एक कम्युनिटी, जहां तक हमें हिस्ट्री बताते हैं कि ये लोग बाहर से आए हैं और ये लोग ने एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया गया ये बताया गया था, लेकिन उस शांतिपूर्वक में उसमें बंदूकधारी भी थे और करीब 3:30-4 बजे उनके रैली के साथ साथ ये लोग ने इनोसेंट मैतेई भाइयों घरों को वो ना उसमें कोई जात ना कोई पात ना कोई धर्म ऐसा कुछ ना देख के ये लोग ने घर जलाना शुरू किया था। वैसे ही सेम मोरे में भी हुआ था। ये सब जगह ये जो कम्युनिटी ये लोग बहुसंख्यक है। हमें 3 तारीख को जब ये पता चला, जो मैतेई लोग जो दुनिया की हर प्रांत में रहते हैं, हमें ये बहुत आश्चर्य लगा ये क्या हो गया मणिपुर में और ये क्यों मैतेई को टारगेट कर रहे हैं। ये 3 ही नहीं 4-5 ऐसे चलते रहा। ये हो क्या रहा है? हमने क्या गुनाह किया है? इस कम्युनिटी के ऊपर हमने क्या गुनाह किया है जो हमें एक बदलाव सा जैसे एक भाव से हमें ललकार रहा है। देखिए आज 45 डेज हो चुका है और अगर आप पूछते हैं मणिपुर का स्थिति कैसा है, मणिपुर का स्थिति और बिगड़ता जा रहा है और हमें आशंका है आगे कुछ दिनों में और भी कुछ भयावह रूप होने वाले जा रहे हैं और इसका मूल वजह जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मणिपुर के इशू को अभी तक वो लोग ना समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना इसको कुछ एड्रेस करने के लिए कोशिश है। माननीय गृह मंत्री जरूर 29 तारीख को मणिपुर में आए थे। उन्होंने 3 दिन का सफर किया था मणिपुर में, अलग अलग प्रांतों में, और हमारी जो मैतेई संप्रदाय की जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस उनके साथ भी 30 तारीख को एक मीटिंग हुआ था जिसमें मैं खुद प्रेजेंट था। ये हुआ था चीफ मिनिस्टर की ऑफिस में, कैबिनेट रूम में हुआ था। वहाँ करीब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के करीब 9-10 ऑर्गेनाइजेशन थे, उसमें मैं भी उसमें शामिल था। वर्ल्ड मैतेई काउंसिल की तरफ से मैंने माननीय गृह मंत्री को 5 पॉइंट एजेंडा रखे थे। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, हमने इसलिए रखा था कि ये जो हिंसात्मक घटना है इसको अगर जड़ से इसको ठीक करना है और मणिपुर में शांति लाना है तो हमने 5 पॉइंट रखे थे। और पहले जो पॉइंट था ये बताया गया कि जो अगर इसका रूट कॉज एनालिसिस देखते हैं तो इसमें जो कुकी मिलिटेंट्स है, जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन में जो है, ये लोग इनके साथ एक्टिवली इन्वॉल्व होके ये दंगा फसाद कर रहे हैं। और अगर शांति को बनाना है तो ये सू में रहे हुए मिलिटेंट्स को जल्दी उनको काबू में कीजिएगा, तभी जाके मणिपुर में शांति का जो एक किरण वो आ सकता है। नंबर 2 हमने रखा था, जो मीडिया में जो बातें फैला रखा है, जो हमारी ये जो दूसरे कम्युनिटी ने, ये बिल्कुल ही गलत है। इसमें ना कोई क्रिश्चियन बोल के कोई रिलीजन को ना टारगेट, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मेजोरिटी कोई माइनॉरिटी को टारगेट, ऐसा कुछ नहीं है। ये उनकी
अलग सा एक उनका एक उद्देश्य था और उस उद्देश्य को ये लोग ने मकाम करने के लिए ये लोग ने बहुत दूसरे तरीका अपनाया और ये लोग ये हिंसात्मक घटना ये शुरू किया था। तो इसको हमें जानना चाहिए कि ये किसने किया था, क्यों किया था और क्या मकसद था। तो हमने बोला था कि you have to institute a judicial inquiry। हालांकि जो माननीय गृह मंत्री ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन के सफर के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तब उन्होंने ये बताया कि जरूर जुडिशियल इंक्वायरी होगा। जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अजय लंबा जी और एक रिटायर्ड आईएएस और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ये तीनों लीड करेंगे जुडिशियल इंक्वायरी। लेकिन अभी हम माननीय गृह मंत्री को ये बोलेंगे कि सिंपल एक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं चलेगा, इसको कोर्ट मॉनिटर्ड जुडिशियल इंक्वायरी होना पड़ेगा, तब जाके इसमें कोई अगर इन्फ्लुएंस कर सकता है तो रोक सकता है। नंबर 3 हमने रखा था कोई शांति की वार्ता ये दूसरे कम्युनिटी से नहीं होगा जब तक आप नंबर 1 जो सू मिलिटेंट्स का जो है उसको एब्रोगेट कर कीजिए, उसके बाद की कोई शांति का वार्ता होगा। और मेरे ख्याल से ये सच होगा और सब आप लोग मानते होंगे इसको। चौथा हमने पॉइंट रखा था जो मणिपुर में जो ये हिंसात्मक जो घटना हो रहा है इसका एक जो रोक को जो है ये म्यांमार से जो इलीगली जो घुसे हैं पिछले 10-20 सालों में, जिसका नंबर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये करीब 4 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स म्यांमार से घुसे हुए हैं। और ये लोग क्या क्या किया है मणिपुर के जो पहाड़ों में, आप जानते हैं, इसमें मेरे को कोई बोलने की जरूरत नहीं है। पहाड़ों को डिफॉरेस्ट किया, ओपी कल्टीवेशन किया और क्या क्या नहीं होगा। तो इलीगल इमिग्रेशन जो है इसको म्यांमार से जो आए हैं इसको बंद करना है। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हमारे माननीय गृह मंत्री ने ये भी बोला कि 395 किलोमीटर लॉन्ग जो म्यांमार और मणिपुर का जो बॉर्डर है इसमें 10 किलोमीटर का फेंसिंग हो चुका है और उन्होंने और 80 किलोमीटर का फेंसिंग का अप्रूवल दिया गया है। लेकिन मेरे ख्याल से वो काफी नहीं है और ये जो 80 किलोमीटर जो बनना है इसको भी जल्दी होना चाहिए। और नंबर 5th पॉइंट में हमने ये डिमांड रखा था कि एनआरसी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। हालांकि मणिपुर की जो सरकार ने एनआरसी का प्रोसेस को लेकर इसका बातचीत हो चुका है, तो जो शुरू में जो मणिपुर सरकार ने जो रखा था जो कट ऑफ ईयर ऑफ द एनआरसी इंप्लीमेंटेशन विल बी 1951, लेकिन ये मणिपुर में जो मेजर 3 जो कम्युनिटी है इसमें से सिर्फ एक ही कम्युनिटी ने इसको चैलेंज किया है और बोला है कि 1951 नहीं चाहिए, 1961 को करना है। उनके दबाव में मणिपुर सरकार ने 1961 ईयर में चेंज कर दिया गया है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन सेंसस डेटा अगर देखेंगे 1951 और 61 के बीच में बहुत तादाद में इलीगल इमिग्रेंट म्यांमार से घुस चुका है और ये कम्युनिटी उनको बचाना चाहता है। होम मिनिस्टर ने ये आश्वासन दिया, एनआरसी का प्रोसेस तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये सिर्फ मणिपुर में नहीं है, ये मिजोरम और नागालैंड तीनों साथ बराबर चलेगा और इसका इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। इसके लिए आपको परेशानी होना नहीं चाहिए। उन्होंने और एक इस बात बोला है, एक्नॉलेज किया है, नहीं बोला, मैं ये बोलता हूं कि उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि इलीगल इमिग्रेंट्स का प्रॉब्लम, टू बी प्रिसाइज, गृह मंत्री जी ने यह बोला है, चीन कुकी, उन्होंने सिर्फ कुकी भी बोला नहीं है, ये चीन कुकी, ये इलीगल इमिग्रेंट्स सिर्फ आपका मणिपुर का ही प्रॉब्लम नहीं है, ये मिजोरम में भी ये इलीगल इमिग्रेंट्स का सरदर्दी उनको भी है।
एनआरसी जरूर होगा, ये उनकी आश्वासन है और होगा। इसके लिए ज्यादा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट होता है तो हम विजिलेंस करना पड़ेगा, ताकि असम में जैसे हो गया था ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी जो हम बोलते हैं कि इलीगल है, ऐसा ना हो कि एनआरसी के बाद रातों रात सब लीगल हो जाएगा। ये हमें एक विजिलेंस देना बहुत जरूरी है। हमने गृह मंत्री जी को 5 पॉइंट रखने के बाद हमने बोला, महोदय ये 5 पॉइंट, ये जो पॉइंट है जरूर ये चाहिए, लेकिन मेइतेई के लिए एक अलग से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मेइतेई मणिपुर में एप ओरिजिनल इंडिजिनस कम्युनिटी है। एप ओरिजिनल मतलब जब वहां पे कोई मानव जाति नहीं था, कोई बाहर से आया नहीं, वहां पे मेइतेई ने वहां पे रहना शुरू किया था। सिर्फ मेइतेई है नागा, ये दो ही संप्रदाय है जो मेइतेई में कोई दूसरे बाहर से आने से पहले ये 2 संप्रदाय मणिपुर में फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल ये रह चुका है। लेकिन आज मेइतेई का जो परिस्थिति है, संख्या में हम अगर 2011 की पॉपुलेशन, अगर सेंसस पॉपुलेशन लेते हैं तो हम लोग करीब 15 लाख होते हैं, और ये 15 लाख आबादी, मेइतेई आबादी, ये कहाँ रहते हैं? अगर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से 1800 स्क्वायर किलोमीटर, 30 स्क्वायर किलोमीटर बाय 60 स्क्वायर किलोमीटर, ऐसा एक एरिया है जहां पे मेइतेई लीगली बस सकते हैं। ना कोई मेइतेई पहाड़ में जा सकता है, ना मेइतेई पहाड़ में कोई जमीन खरीद सकता है। वही बात नहीं, ये जो 1800 स्क्वायर किलोमीटर जहां पे मेइतेई रहते हैं, ये 15 लाख जो मेइतेई कम्युनिटी रह सकते हैं, इसमें से मेइतेई नहीं हर कोई रह सकते हैं, हर कोई रह सकते हैं। उसमें अगर कोई मेइतेई भाइयों बहनों का कोई आर्थिक दुविधा के कारण उन्होंने अगर कोई शेड्यूल्ड ट्राइबल कम्युनिटी को अगर जमीन, उनका पुरखों का जमीन अगर बेच दिया और भविष्य में उसको कुछ पैसा आया और वो उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वापस करना चाहता है, तो आज के लैंड रोल वो आपको नहीं देगा। अगर मेइतेई, आज देखिए लोग बोलते हैं आपका मणिपुर से इतना नेशनल लेवल में कंट्रीब्यूट कर चुका है, आपका मणिपुर से ओलंपिक मेडल लाते हैं, आपका मणिपुर से ऐसा एमिनेंट पर्सनालिटी है। लेकिन मैं बोला था एक टीवी इंटरव्यू में, तो क्या अफ्रीकन कंटिनेंट में तो ओलंपिक मणिपुर से ज्यादा गोल्ड मेडल लेके जाते हैं, तो क्या वो दुनिया का सबसे डेवलप कंट्री हो गया? नहीं। तो ऐसा मत बोले, हमारे 2-3 जन खिलाड़ी ने, हम गर्व करते हैं, लेकिन ऐसे बात नहीं है। उससे गोल्ड मेडल लाया तो मणिपुर बहुत डेवलप हो गया, भारत में कोई भी राज्य से ज्यादा डेवलप हो गया, ऐसा कुछ नहीं, ये गलतफहमी है। अगर आप देखेंगे जो इम्फाल में जो अगर आज की डेट में कोई नया अगर मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन होता है, वो मैं दौड़ के बाद बोल सकता हूँ कि वो मेइतेई का घर नहीं है, मेइतेई का घर नहीं है। कोई चैलेंज कर सकता है इसमें से? नहीं, वो मेइतेई का घर नहीं है, वो कोई दूसरा कम्युनिटी का है। ये सोचिए, आज मेइतेई हम हैंड टू माउथ रोजी रोजगार से हम लोग वहां पे ऐसे जी रहे, ऐसे हमारी स्थिति है। तो बोला था मैंने गृह मंत्री जी को, मेइतेई का कोई दूसरा घर नहीं है मणिपुर के अलावा। और कोई कम्युनिटी कैसे ये दावा कर सकता है कि आप मेजॉरिटी हो? आज ग्लोबलाइजेशन है, क्यों मणिपुर का कंटेक्स्ट में आप बात करोगे? मेइतेई का ग्लोबल पॉपुलेशन अगर वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो कितना है? 17 से 18 लाख होगा। मणिपुर में करीब 15 लाख है, असम में करीब 1,70,000 है, कुछ बांग्लादेश है, कुछ म्यांमार है, चिड़ेगुने कुछ ऐसा ही है दूसरा स्टेट में, कुल मिला के 17 से 18 लाख होंगे। लेकिन आज जो दूसरे कम्युनिटी वो जो मांग कर रहे हैं कि वो लोग माइनॉरिटी है और मेइतेई मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी को हम लोग उनको अत्याचार कर रहे हैं। अगर उनका पॉपुलेशन देखेंगे आप चौंक जाएंगे, हमारे से 3 गुना है। कुकी का पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट 50 लाख है,
क्योंकि अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो म्यांमार में 30 लाख से ऊपर है। अगर मिजोरम को देखेंगे तो करीब 10.9 लाख दिखाता है। हो सकता है कि 90,000 आपने माइनस कर दिया दूसरे कम्युनिटी के लिए, तो 10 लाख तो वहीं पे है। टोटल कितना हुआ? 40। और मणिपुर में आज करीब 9 लाख हो चुका है। कुल मिला के करीब 49-50 लाख से हमसे ऑलमोस्ट 3 गुना है। तो कैसे बोल सकता है कि आप मेजोरिटी है, हम माइनॉरिटी है, हमको शोषण कर रहा है? ये सब नहीं चलेगा। तो मैतेई के लिए कोई दूसरा होम नहीं है। देयर इज नो सेकेंड होम फॉर द मैतेई एक्सेप्ट मणिपुर। आसाम का चिने गुने 1.5 लाख आदमी चिल्ला चिल्ला के बोल नहीं सकते कि हमारी आइडेंटिटी, मैतेई का आइडेंटिटी आसाम में हम बना सकते हैं। नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो मैतेई को आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देना चाहिए। जो यहाँ पे हजारों साल से यहाँ पे हम लोग एक किंगडम बना के रखा था, जो आज मणिपुर के जो भूसीमित है उससे भी ज्यादा हमारे साम्राज्य है। आज उसके बच्चे उसका घर नहीं हो रहा है, घर छीन रहा है, उसका जमीन छीन रहा है। ये कैसी बात हो गया? ऐसे हमने बात रखा था और हमने बोला एक ही चीज मैतेई को जो बचा सकते हैं फ्रॉम द एक्सटेंशन इज दैट मैतेई शुड बी गिवन द शेड्यूल स्टेटस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वही मैतेई को बचा सकता है। ये बात मैं कौन के साथ कह सकता हूँ? वहाँ पे जो प्रोमिनेंट सीएसओ लीडर्स मैतेई का किसी का भी हिम्मत नहीं हुआ ये बात बोलने के लिए, लेकिन वर्ल्ड मैतेई काउंसिल ने बोला है ये। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे हम लोग जब फंक्शन शुरू हुआ था तो हमारे मन में ये जो पॉइंट लिखा है, सेव द इंटीग्रिटी ऑफ मणिपुर। वर्ल्ड मैतेई काउंसिल का एनालिसिस के हिसाब से मणिपुर का 1 इंच जमीन कोई छीन नहीं सकता। और ये बात सिर्फ वर्ल्ड मैतेई काउंसिल नहीं कहते हैं, वो तो होम मिनिस्टर जी जब 30 तारीख आए उन्होंने ये सभा में जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को जो 30 तारीख को जो मीटिंग हुआ था उन्होंने बोला है, हिंदी में ये उन्होंने बोला है, मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि मणिपुर का 1 इंच का जमीन मैं टुकड़ा करके कोई किसी को देने वाला नहीं हूं। ये उन्होंने आश्वासन दिया है। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगर पॉलिसी को भी एनालिसिस करेंगे तो इन लोग ने ये सिंपल क्लियर हो चुका है। आज भारतवर्ष में जितने राज्य यूनियन टेरिटरी है जो है वही रहेगा, इसमें कोई और दूसरा विभाजन नहीं होगा। ये पहले भी बोल चुका है। इसलिए भाइयों आप इसका चिंता मत कीजिए कि मणिपुर का इंटीग्रेशन को इंटीग्रिटी को लेकर यहाँ से कोई टुकड़ा हो जाएगा, विभाजन होगा, ये कभी नहीं होगा। क्योंकि मैं बोलता हूँ ये आपको डरा सकता है, ये आपके हमारे मन में एक डरावना हो सकता है कि इस जो घटना को लेकर इस जो परिस्थिति में अगर हम कुछ डिमांड करेंगे, कुछ बोलेंगे तो ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ डायरेक्शन में लेके जाए कुछ करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आज मैतेई जो ये हिंसात्मक घटना से जो आज मैतेई जो एकत्रित हुए हैं, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। मैंने ही बोला था, इट इज ए बिगिनिंग, it is a beginning for a new era of the Meitei, and it should be beginning of a new era of Meitei. And अगर अब पीस हो गया ऐसा मत सोचिएगा कि we have achieved, चलो अपने अपने घर पे चलो, जिसका जो घर जल गया उनको मदद करते घर बसाने के लिए। नो, वो तो करेंगे, लेकिन there should be something we have to begin. But how we as a Meitei have to protect, have to learn to protect, have to learn how we have to unite each other, and we have to fight for our identity. Because this aggression of this community, this is not going to be the last. There will be other threats also will be coming, not from the indigenous community. I strongly believe there are 2 indigenous communities in Manipur, and we are always hand in hand. We are always hand in hand.
they have acknowledged our crisis. They sympathize our crisis. Let me quote, in that CSO meeting, there was a Naga leader also present. I will not quote his name, but he mentioned this very confidently, very strongly to Honorable Home Minister. उन्होंने ये बोला, हो सकता है ये मैतेई और ये कुकी का जो हिंसात्मक घटना है, हो सकता है ये जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर सरकार ने इस कम्युनिटी का जो इनका इंटेंशन है, जो एटीट्यूड है, इसको अगर सरकार अगर इसको ठीक नहीं करते तो इसके बाद बहुत जरूर पहाड़ों में भी और बहुत जल्दी नागा कुकी के बीच में भी होगा, क्योंकि ये लोग पहाड़ के जमीन भी ऐसे तस किया है जो बोला है कि ये नागा भी ये लोग के ऊपर बहुत नाराज है। तो ऐसा परिस्थिति है। तो मैं ये बात बोल के मैं मेरा वक्तव्य मैं यहाँ पे मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आज मैतेई जो हम एकत्रित हुए हैं, हमारे महाराष्ट्र में क्या इतना ही मैतेई लोग हैं क्या? बाकी क्यों नहीं आए? बाकियों को क्या परेशानी नहीं है? बाकियों को आंसू नहीं आते? जो आज मणिपुर में रिलीफ सेंटर में एक साथ एक पेन, कोई इमा, एक फनेक और एक इनफी लेकर आज वहां पे जब खाना देगा तो खाना खाने को मिलता है। ऐसे रिलीफ कैंप में हमारी वहां पे हमारी इमा, हमारी इपा, हमारे भाइयों बहनों ऐसे में है। तो क्या आपको लगता था कि आज धूप है तो हम ये प्रोटेस्ट रैली में नहीं जाते हैं? अगर ऐसा आप सोचते हैं, जो यहाँ पे जो नहीं आए हैं, अगर ऐसा सोचते हैं तो ये आप अपने आप को आप गद्दारी कर रहे हैं। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एक्शन नहीं लेते, अगर शांति को अगर बनाना है तो ये जो सू मिलिटेंट्स को है इसको कब्जा किए, मेरे ख्याल से 24 आवर ऐसे शांति आ जाएगा मुल्क में। जब मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, आज कॉन्फ्लिक्ट है उसका ऑपोजिट क्या है? पीस है। उसका जो ऑपोजिट है पीस है। और पीस के लिए क्या चाहिए? पीस या कॉन्फ्लिक्ट में क्या चाहिए? एक्स्ट्रा वार वेयर जस्टिस। अगर इंग्लिश में बताओ, जस्टिस शुड बी पीस का सफर है तो वो कोई नहीं उम्मीदते हैं। ये जो किसने शुरू किया था, दूसरा कम्युनिटी ने शुरू किया। आज कुछ भाषा बोले सफर हो रहे मैतेई है, और मैतेई जो सफर है अगर उसको वापस नहीं मिलता, मेरे को लगता है मनगोड़ा के पीस दिया है वो टेम्पोरल रहेगा। इसलिए हमें राष्ट्रीय जो देखा है इसका एक मकसद है और वही मकसद है मेरे को जस्टिस चाहिए। बराबर जस्टिस देना, हमेशा के लिए पीस बढ़ाना। और ये जो बड़ा फर्क किसने हुआ है? जो दूसरा कम्युनिटी है उनको जो जमीन है उनके पास उसको और चाहिए लैंड एंड एट द सेम टाइम दे वांट पावर। आज इनको लगता है कि पैसा है इनके पास, ब्यूरोक्रेसी में इनके पास, मिनिस्ट्री में बहुत लोग है, तो आप मैतेई को ललकार सकता है। ये बहुत गलत बात है। शांतिपूर्वक एक यूनिवर्सिटी है, मैतेई ने इंडिया ने कहा आपको कभी सुनाई नहीं देगा मैतेई किसी जन के साथ लड़ाई किया नहीं, क्योंकि हम लॉ अबाइडिंग कमिटी है, देश के कानून को हम मानते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को हम इज्जत करते हैं। जब तक कोई लोगों को मान करते तो क्या वो कोई गबड़िया नहीं करेगा। और आज ये दोषी नहीं कर सकते हैं कि मैतेई जो है आज उनको बचा रहे और ये हिंसात्मक घटना हमने शुरू है, ये गलत बात है। और आज ये देश जाता है, ये आज देश जाता है। शुरू में पैसा फेंकते तो सोशल मीडिया और मीडिया में जो इन्वेस्ट किया, आज बोलिए आज बात सब धीरे क्रिस्टल क्लियर है। ये मैं बोल के मैं एक स्लोगन बोलना चाहता हूँ, दो स्लोगन। ईमान पक्का जाए। थैंक यू। मणिपुर इमाना, मणिपुर इमाना, मणिपुर की सत्तम, मणिपुर की सत्तम, मोदी जी, मोदी जी। Thank you, everyone. I would like to invite Naresh Chandra Lystrom, technology expert, who will share the insights on role of technology in